Good evening, everyone. A student from Shri Ram School, Delhi, class 10th Mathematics first term examination 2024 and 25 approached me to solve and explain the MCQs. Number 1. A polynomial in x is divided by x minus 3, and for x minus 3 to be a factor of this polynomial, the remainder should be what? जब रिमाइंडर फाइंड करते हैं हम तो एक रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाता है तो इट मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. इट मीन्स एक्स माइनस 3 टू बी अ फैक्टर पोलिनोमियल, द रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो. ऑप्शन बी. Second, when the roots of the quadratic equation are real and equal, this is the condition. The roots are real and equal, then the discriminant of the quadratic equation is what? The discriminant is equal to 0. D for discriminant equal to 0 when the roots are real and equal. इसमें conditions होती हैं. If the roots are real and unequal, then D is greater than 0, mean positive. If roots are real and equal, D is equal to 0. And if roots are not real, then D is less than 0, mean negative. But हमें क्या पूछा गया? What is asked? When the roots are real and equal. Real and equal के लिए क्या होगा? Discriminant equal to 0. Your option is C. This is answer. Next 3, third part. A die is thrown once, the probability of getting a number divisible by 3 and 5. Die के outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस. ये MCQ है, इसमें कुछ ज़्यादा हमने लिखना नहीं, ऑरली हो जाता है. तो ये है सैम्पल स्पेस ऑफ द थ्रोइंग ए डाइस, वन डाई. इसमें क्या पूछा गया? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5. तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. और डिविजिबल बाय 3 नंबर कौन से हैं? 3, 6. एंड डिविजिबल बाय 5 क्या है? 5. नाउ दीज आर 3 नंबर्स. हमें क्या फाइंड करना है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो. हमें कोई नंबर ऐसा नहीं मिला जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो. इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 5 इज 0. वी डिड नॉट गेट ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ. दोनों में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 और 5 से डिवाइड हो, दोनों से. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0. बी पार्ट. nth term of an AP is 6n minus 15. nth term is equal to 6n minus 15. This is given. Then the common difference is what? Difference, how to find the common difference? A2 minus A1. Any term minus preceding term. A2 minus A1 or A3 minus A2. तो हम कैसे करेंगे? How to get A1 and A2? Put n is equal to 1. Put n is equal to 1, we get A1 is equal to 6 into 1 minus 15. जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करो. यहाँ 1 पुट किया, A1 मिल गया. यहाँ 1 पुट किया, तो is equal to 6 minus 15 is minus 9. Now put n is equal to 2. Put n is equal to 2. We get, यहाँ भी 2 पुट करो, यहाँ भी 2 पुट करो. We get A2 is equal to 6 into 2 minus 15, which is equal to 12 minus 15, which is equal to minus 3. A2 is minus 3. D क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म यानी फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू व्हाट इज A2? A2 इज minus 3. A2 is minus 3 minus A1. A1 is minus 9. So which is equal to minus 3 plus 9, which is equal to 6. This is a common difference. Option is A.
Fifth, given that the sum of the square of first 7 natural number is 140, sum is given 140, number of observation कितनी है 7, number of observation is 7, sum of 7 observation is 140, what is the mean? मीन का फॉर्मूला होता है sum of observation upon number of observation. Sum is 140 upon number of observation 7. 720 the. This is option. This is answer. Option is A. Sixth, a solid sphere of two identical hemispheres is cut into two identical hemispheres. This is a sphere and this is a hemisphere. When sphere is cut into two parts, we get two hemisphere, identical hemisphere. अगर equal parts में बीच में कट कर दें, दो identical मीन equal hemisphere मिलेंगे हमें. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. तो मटेरियल तो सेम ही रहेगा, जब हम दो पार्ट्स करते हैं तो मटेरियल सेम रहेगा. तो दोनों के मटेरियल को ऐड करो, वॉल्यूम को ऐड करो, 2/3 प्लस 2/3 4/3. यस, द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर. ओके, दिस इज ट्रू. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, the total surface area of two hemisphere together is equal to surface area of the original sphere. Surface area of the sphere 4/3 pi r square. Now surface area mean total surface area. जब भी लिखा होता है surface area mean total surface area. अदरवाइज जब कर्व्ड surface area बोलेंगे तो उसका आंसर है 2 pi r square. जब उसने पूछा surface area, it mean total surface area. यहाँ लिखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर. इसका टोटल हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप जो है वो भी सरफेस है 3 पाई आर स्क्वायर. दोनों के टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर. जब इनको ऐड करेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. इट मीन्स यहाँ लिखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर together is equal to the surface area of the original sphere. No, this is false. This is false. First statement is true, second statement is false. C part, statement of 1 is true and statement 2 is false. This is option C. This is your answer. Seventh part, question of matrices. A is equal to, matrix A is equal to 3 minus 2 and B is equal to -1 4 2 0. Given matrix A is equal to 3 minus 2 and B -1 4 2 0. Assertion A, product AB of the matrices A and B is possible. ये जो प्रोडक्ट होता है पॉसिबल कब होता है, when the number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. पहले इसका ऑर्डर लिख लो, 1 row 2 column, 1 row 2 column. इसका है 2 row
2 रो एंड 2 कॉलम। अब चेक कर लो कि ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो बराबर है 2 and 2। इट मीन्स प्रोडक्ट ए बी ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल। दिस इज ट्रू। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। सेकेंड पार्ट है रीजन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। यस, जो मैंने अभी बताया कि इसके कॉलम इसके रो बराबर हो तभी पॉसिबल है, और आगे रीजन भी यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। दिस इज आल्सो ट्रू। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। हम ये फाइंड करेंगे इसमें ऑप्शन में क्या है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, both A and R true, and R is the correct region of A. Yes. C. Number 8. If X belongs to -1, 0, 1, 3, 5, 6. This is a replacement set. This is a replacement set. Or what is in equation is given 3x minus 2 less than equal to 8. 3x less than equal to 8 plus 2, 3x less than equal to 10, x less than equal to 10 upon 3, which is equal to 3.3 approximate. Now वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस रिप्लेसमेंट सेट के अंदर। जो वैल्यू 3.3 से लेस देन इक्वल टू, तो 3.3 यहाँ डेसिमल तो है नहीं, तो 3.3 से छोटे नंबर कौन से हैं? 3, 1, 0, -1, -1, 0, 1, 3। 3.3 से लेस देन इक्वल टू तो है नहीं नंबर 3.3, तो उसे छोटे ले लो। -1 यहाँ से लेने हैं, अपने आप नहीं लेने। -1, 0, 1, 2 भी लिख दो। अगर हम खुद ही लिखेंगे ना इससे लेस देन इक्वल टू, तो उसमें हम 2 बोलते हैं, बट हमें रिप्लेसमेंट सेट के अंदर 2 नहीं है, तो हम लिखेंगे -1, 0, 1, 3। दिस इज ऑप्शन B. B is the option. Ninth part. The trunk of a tree is cylindrical. The trunk of a tree is cylindrical in shape with circumference of 88 centimeter. C circumference. C is circumference 88 सेंटीमीटर। तो C क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 pi r। सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r इज इक्वल टू 88। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। r इज इक्वल टू 88 इंटू 7, 7 ऊपर चल जाएगा, 2 और 22 नीचे लिख लो। 22 4 द 88, 2 1 द 2 2 द r is equal to 7 2 द 7 2 द 14, 7 2 द 14 सेंटीमीटर। तो इसका हमें r मिल गया 14 सेंटीमीटर। r इज 14 सेंटीमीटर। हाइट इसमें आगे लिखा है द लेंथ इज 3 मीटर। लेंथ मीन हाइट। So this is height is equal to 3 मीटर। हमारे जो आंसर हैं वो सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन 3 इंटू 100, 300 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टिम्बर दैट कैन बी obtained फ्रॉम द ट्रंक इज। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? पाई r square h, which is equal to 22/7 r square। स्क्वेयर मीन जो r की वैल्यू उसको 2 बार लिखो। 14 इंटू 14 इंटू हाइट 300, 7 1 द 7 2 द, which is equal to 22 to the 44 इंटू 14 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 14 से मल्टीप्लाई कर लो। 14 4 द
56, 5 कैरी कर लो, 14 4 दा 56 प्लस 5 61 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 दा 18, 1 कैरी कर लो, 3 1 दा 3 प्लस 1 4, 3 6 दा 18, ये 2 0 लिख दो साथ में, इतने सेंटीमीटर क्यूब 184800 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज ऑप्शन सी 184800 सी ऑप्शन. दिस इज आंसर. 10th पार्ट में क्या लिखा है? पार्ट 10th, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो पहले इसका फैक्टर बना लो, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0. एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. द रूट्स आर 1, -1. इसमें प्लस माइनस 1 का मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो यू कैन राइट आल्सो दिस प्लस माइनस 1. दिस इज ऑप्शन डी. कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट. तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. जब हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर तो वो राइट प्लस माइनस, ये आंसर होता है. तो दिस इज सेम आंसर डी. आप जैसे भी कर सकते कर लो, डी ऑप्शन. नाउ 11th पार्ट, Jia deposited 400 every month in recurring deposit account for 2.5 years. If she gets rupees 1085 as interest at the time of maturity, then the rate of interest per annum is what? Deposited rupees 400. This is principal. This is principal rupees 400. Recurring deposit account for 2.5 year time. 2.5 ईयर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में. 1 ईयर में 12 मंथ, 2 ईयर में 24 मंथ, हाफ ईयर में 6 मंथ. 24 प्लस 6 30 मंथ. जब भी हमें ईयर में देगा उसको मंथ में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज नेक्स्ट गिवन? इंटरेस्ट. शी गेट्स इतना एज इंटरेस्ट. ये है इंटरेस्ट 1085. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर फाइंड करना है. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? पी एन एन प्लस 1 आर अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1085. पुट द वैल्यूज 400 इंटू 30 इंटू 31. n plus 1 means 30 plus 1, 31 into r upon 2400 upon 2400. 2 0 cancel. 4 1 the 4 6 the 6 1 the 6 5 the. This becomes 5 1 the 5 5 3 the 15, which is equal to 1085. तो इसको चाहे मल्टीप्लाई ना करो, आप लिखो r इज इक्वल टू 1085. नीचे क्रॉस मल्टी कुछ है नहीं, ऊपर वाले नीचे ले आओ. 5 इंटू 31, 5 इंटू 31. ये 5 से कट कर दो. 5 1 द 5 2 द 10, 5 1 द 5 3 35, 5 7 द 35. 31 इंटू 7 217. 31 इंटू 7. R is equal to 7%. Option is B. Option is B. 12th part. The cost of certain services is rupees 10,000 excluding GST of rupees 1800. The rate of GST is what? Rate of GST means GST percent. परसेंट में निकालना है GST. तो GST परसेंट को X% सपोज कर लो. 10,000 का X% कितना आएगा? 1800. दिस इज इन रुपीज़. हम लिख सकते हैं
x% ऑफ, अगर GST x% है तो 10,000 का x% फाइंड करो, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, x% ऑफ 10,000, बट उसकी वैल्यू गिवन है, GST इज गिवन to 1800. नाउ इसको लिखो x/100 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1800, 2 0 कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 1800/100, ये 2 0 कैंसिल कर दो, विच इज इक्वल टू 18%. C is the answer, option C. Next, 13th. A dividend of 10% was declared on ₹100 share at a certain price. If the rate of return is 8%, the mark value of the share is what? A dividend of 10%, dividend is equal to 10%. Declared on ₹100 share. On ₹100 share means जिसकी फेस वैल्यू ₹100 एट अ सर्टेन प्राइस, जिसकी मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, एट अ सर्टेन प्राइस. द रेट ऑफ रिटर्न इज R%, दैट इज R% इज इक्वल टू 8%. रेट ऑफ रिटर्न को हम इनकम परसेंट भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को हम यील्ड परसेंट भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को हम प्रॉफिट परसेंट भी कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट कितना आया, यील्ड कितना आया, R% रेट ऑफ रिटर्न. इसका एक फार्मूला है, दैट इज R% इंटू MV इज इक्वल टू D%, डिविडेंड परसेंट इंटू FV. अगर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं FV इधर है कि MV इधर है, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ये लाइन आप याद रखो, जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन होती है उसकी. तो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू मीन D के साथ FV आएगा, R के साथ MV आएगा. यू पुट दी वैल्यूज, R% मीन 8%, 8% मीन 8/100. MV हमें फाइंड करना है, मार्क वैल्यू. D% इज 10%, 10/100 इंटू फेस वैल्यू इज 100. आप ऐसे भी कट कर सकते हो 100, और नीचे नीचे भी कट सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो 100, वहाँ भी कट कर सकते हो. तो MV इज इक्वल टू 10 इंटू 100/8, 10 इंटू 100 इज 1000. तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 125. 125 इंटू 8 1000 होता है. तो दिस इज MV, ऑप्शन नंबर B. B इज योर आंसर. नेक्स्ट 14th. A/B is equal to B/C. Then A/C is what? इसको लिख लो, A/B मीन A/B, B/C मीन B/C. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, B² इज इक्वल टू AC. तो इसमें वैल्यू डाल दो, C की वैल्यू डाल दो, A को नीचे ले जाओ, B² अपॉन A इज इक्वल C. ये वैल्यू यहाँ डाल दो C की, ये बन जाएगा A रेशियो B² अपॉन A. तो रेशियो में क्या होता है, सेम नंबर से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमें फ्रैक्शन को रिमूव करना है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है आंसर में. तो A से मल्टीप्लाई कर दोनों को A से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, इधर कैंसिल हो गया और इधर बन गया A² रेशियो B², A² रेशियो B². C पार्ट, दिस इज ऑप्शन. आपके माइंड में बात आएगी,
हमने सी की वैल्यू क्यों ली, हमने ए की वैल्यू क्यों नहीं ली? यू कैन ट्राई, अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से नीचे सी आ जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू ए, ये पुट कर दो, बी स्क्वायर अपॉन सी रेशो सी, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो सी इंटू सी, सी कट हो गया, बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। तो इसमें बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर की ऑप्शन नहीं है, ओनली बी रेशियो सी है। इट मीन्स हमें ये लेके हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज आंसर। तो इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं है। नेक्स्ट 15 ₹320 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। 320 अमाउंट को हम अगर 8 बच्चों में डिवाइड करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8, टोटल अमाउंट 320, ईच चिल्ड्रन विल गेट, एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे? 40। एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे? 40 रुपीज़। नेक्स्ट, इफ 2 more children join them, each will get, अगर 2 बच्चे और ज्वाइन करते हैं, तो पहले हमारे पास 8 बच्चे थे, 8 चिल्ड्रन, अब 2 ऐड कर दो, 2 + 8 10, आंसर विल बी 32। तो जब हमारे पास 8 चिल्ड्रन थे तो वी गेट ईच चाइल्ड विल गेट 40। इफ देयर आर 2 more children मीन 10 चिल्ड्रन, देन व्हाट इज द ईच विल गेट 32 रुपीज़। इसमें क्या पूछा गया? हाउ मेनी रुपीज़ मोर और लेस, ईच विल गेट हाउ मेनी रुपीज़ मोर लेस, हाउ मेनी रुपीज़ मीन 8 का डिफरेंस है, 8 रुपये, लेस और मोर यानी कि इसको कम मिलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ₹8 लेस। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, ₹8 लेस। यस, दीज वर योर MCQ ऑफ दिस पेपर। अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल so that other children should be benefited, and please subscribe my YouTube channel.